اختلافات ہوتے رہتے تھے، تو ہم نے روٹ بھی چینج کیا اور سب جو ہے اپنے اپنے روٹ سے چلتا رہیں گے اور یہ سارے اختلافات بھی انشاءاللہ ختم ہوتا جائے. سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے میسج جاتے ہیں، خاص کر کرگل کی تو ادارے کو ایک ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کو لے کے کیا پیغام دیں گے؟ آخری جمعیت العلماء اصلاح شریعہ کرگل سے، کیونکہ کرگل کا خطے لداخ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ آپ اتحاد کی خاطر، خصوصاً ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلامیہ اسکولوں تک ایک ہی ضم ہو جائیں، ضروری نہیں ہے، آپ اپنا ادارہ اپنے پاس رکھیں، ہمارا ادارہ جمعیت العلماء اپنے پاس ہو. ماشاءاللہ دونوں اداروں سے پورے کرگل پورا لداخ جڑا ہوا ہے، اور کبھی کبھار یہاں پہ کچھ ناچاکی ہوتی ہے اور یہ ہر جگہ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں وقت بر وقت جن کا علاج بہت ضروری ہے. میں پیدل چلا کربلا یا حسین، میں پیدل چلا کربلا. السلام علیکم جل ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ ساگر پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر. کاربائن کے جلوس کو لے کے بات کریں تو کارگل میں سب سے بڑا جلوس جو ہے اس وقت انجمن جمعیت العلماء اصلاح شریعہ کارگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بینر تلے جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان حسین علیہ السلام شرکت کر رہے ہیں. کربلا ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے، یکجہتی کا درس دیتا ہے. کرگل کے اتحاد کو کس طرح سے دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو آئے، جیسے قرآن نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ حبل اللہ سے مراد اہل بیت ہیں، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے. جب تک ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ نہیں رہیں گے تب تک اتحاد ہونا ہی مشکل ہے. لہٰذا اتحاد کے لیے اللہ نے معیار قرار دیا ہے، اہل بیت کے راستے پہ چلے، اہل بیت کے راستے سے بھٹک نہ جائے، اہل بیت کے راستے سے دور نہ جائے. جب تک ہم اہل بیت کے راستے سے ہیں وہی اتحاد کا راستہ ہے، وہی اتفاق کا راستہ ہے، وہی قرآن کا راستہ ہے، وہی پیغمبر اسلام کا راستہ ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز کو تحفظ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے کرگل میں بھی الحمدللہ ساری چیز بہت ہی منظم طریقے سے جا رہا ہے. کل ہم نے ہمارا ہمیشہ اربعین کے دن پہ یہ اختلافات ہوتے رہتے تھے، تو ہم نے روٹ بھی چینج کیا اور سب جو ہے اپنے اپنے روٹ سے چلتا رہیں گے اور یہ سارے اختلافات بھی انشاءاللہ ختم ہوتا جائے. جی الحمدللہ ابھی تک تو کامیاب ہے. کل ایڈمنسٹریشن میٹنگ ہوا، اس میں دونوں اداروں سے کہا گیا کہ آپ کا اپنا رائے لائیں. تو ان کے پاس تو کوئی سجیشن نہیں تھا. میں نے ایک سجیشن دیا کہ بھائی اس طرح لال چوک سے ہوتے ہوئے سرکولر روڈ سے گھوم کے فاطمہ چوک سے آئیں گے. تو اس پر دونوں انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور ایڈمنسٹریشن کو بھی اس کو سراہا اور الحمدللہ آج اس کو عملی جامہ پہنا ہے. ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہے اس وقت یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، خاص کر اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی انیشیٹو جو ہے اس وقت ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. یکجہتی کو لے کے، بھائی چارہ کو لے کے، تو اس یکجہتی کو کس طرح سے دیکھتے ہو، خاص کر کرگل کی بات کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین کی ذات اتحاد کے محور ہے. پنجتن پاک میں سے جو آخری نمونہ ہے، نور ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. اور الحسین یجمعنا، حسین ہم سب کو جمع کرتا ہے. جتنے بھی دنیا میں فرق ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، شیعہ فرقے کو فالو کرتا ہو، بلکہ حسین ایک ایسی شخصیت ہے جس حسین کے ارد گرد میں تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہی اربعین ایک نمونہ ہے. آپ جب کربلا معلیٰ میں دیکھتے ہو تو وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ، ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ شیعہ ہوں، نہیں، ہم نے وہاں پر ہندو کو بھی دیکھا، کرسچن کو بھی دیکھا، اور دوسرے مذاہب جو ہمارے مسلمانوں کے 4 بڑے فرقے ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگ کربلا میں پہنچتے ہیں. تو حسین کی اربعین اور عزاداری ہم سب کو یہی پیغام دیتی ہے کہ آپ سب حسین کے محور پر یکجا ہو جائے. الحسین یجمعنا، حسین ہم سب کو جمع کرتا ہے. یہی اربعین بہترین نمونہ ہے کہ حسین تمام مسلمانوں کو، غیر مسلم کو، لیکن حریت پسند انسانوں کو
इमाम हुसैन की मोहब्बत और आज़ादारी एक जगह जमा करती है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दिली ख्वाहिश है कि करगिल के अंदर जो बड़े दो इदारे हैं, इस्लामिया स्कूल और IKMT, खुसूसन मैं करगिल टाउन की बात करूं, करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो यहाँ बहुत बड़े दो इदारे हैं। जिस तरह हम सियासी मैदान के अंदर इत्तिफाक और यकजहती का इजहार करते हैं, तो जरूरी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में हम यकजा हों, इकट्ठे हों, दुनिया को पैगाम दें। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एक कदम इन लोगों ने उठाया है, ये फाले नेक है। हम इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सालों के अंदर IKMT और ISK अपने दोनों बैनर को लेकर, चाहे IKMT का हो ISK का हो, लेकिन जुलूस को इसी अमन और अमान के साथ में निकालने और भाईचारगी को हिफ्ज करने की जरूरत है, क्योंकि हमें हुसैन यही सिखाता है। हुसैन हमें इकट्ठे रहने और इकट्ठे रखवाने की बात दावत देता है। बिल्कुल सियासी मैदान के अंदर हम यकजा होते हैं, वो भी जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी दीनी शायर के अंदर, शायरुल्लाह के अंदर, खुसूसन मुहर्रम आशुरा के अंदर, रोज़े खुश के अंदर और अरबईन जैसे इज्तिमाआत के अंदर हमें हमदिली और इत्तेहाद और इंसजाम दिखाने की बहुत जरूरी है। अगर हम इस तरह बटे रहे तो दुश्मन हमें निस्तनाबूद करेगा। ये मैं पूरी करगिल के आवाम से कहता हूँ कि अगर हम बटे रहे, वाकई आप हालात से, आसपास इर्द गिर्द के हालात से आप देखें, इन हालात को देखकर हमें ये दर्स लेना चाहिए कि अगर हम बटे रहे तो हमें दुश्मन बांटेगा और हम खत्म हो जाएंगे। करगिल एक ऐसी जगह है, ईरान और इराक के बाद तीसरी शियों का मरकज जो है वो करगिल है। करगिलियों को इस अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अहमियत को समझना चाहिए कि हमें खुदाए मुताल ने इन पहाड़ी दर्रों में हम तमाम शियों को एक जगह खलक किया है। मैं ये समझता हूँ ईरान और इराक के बाद अगर शिया कहीं पर पावरफुल है तो वो करगिल के अंदर है, और इसका हमें क्या फायदा होना चाहिए, हमें यकजा होना चाहिए। दुश्मन ने हमें बांटा है, इस तकसीम को हमें खत्म करना चाहिए। अगर खत्म न करें तो हम खत्म होंगे। ये बिल्कुल तारीख का दर्स यही है, तारीख हमें यही सिखाती है। अगर आप इत्तेहाद ना होगे तो दुश्मन आपको टुकड़े कर देगा। तो मेरी करगिल की आवाम से, बिलखुसूस करगिल के दोनों इदारों से ये गुजारिश है कि आप इत्तेहाद के लिए जैसे आपने एक दो मलमूस कदम उठाए हैं, इससे भी मलमूस कदम उठाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है आइंदा इस तरह हो। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, खासकर करगिल की दो इदारे को एक होना बहुत जरूरी है, तो इसको लेके क्या पैगाम देंगे? आखिरी सवाल। हाँ, यही है कि अब आज का जमाना जो है पुराना जमाना नहीं है, आज सोशल मीडिया का जमाना है कि आप जो भी हरकत करेंगे, जो भी काम करते हैं, वो दुनिया के सामने, नजरों के सामने आती है। और खुसूसन हमारे कश्मीरी बरादरान जो करगिल के अंदर आते हैं, ये मैं एक अच्छा कदम समझता हूँ, अरबईन के दिन कश्मीरियों का करगिल में आना। और मैं हमारे करगिली बरादरान से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह इराकी लोग अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं, इमाम हुसैन के मेहमानों का वहाँ इस्तकबाल करते हैं, इसी तरह हमारे करगिल के लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। और हमारे इदारों से, खुसूसन में हमारे जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल से, क्योंकि करगिल का खित्ते लद्दाख का सबसे बड़ा इदारा है, उसके नाते मैं ये कहूँगा कि आप इत्तेहाद की खातिर, खुसूसन जरूरी नहीं है कि हम इस्लामिया स्कूल और तक एक ही जम हो जाए, जरूरी नहीं है। आप अपना इदारा अपने पास रखें, हमारा इदारा जमीयतुल उलमा अपने पास हो, लेकिन ऐसे इज्तिमाआत में हम लोग क्या करें, करगिल के अंदर इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। हम अगर इत्तेहाद का मुजाहिरा न करेंगे तो दुश्मन हमसे सुई इस्तेफादा करेगा और हमें डिवाइड करके, हमें तकसीम करके, हमें निस्तनाबूद करने की कोशिश करेगा। तो हमारी करगिल की आवाम से, करगिल के दोनों इदारों से गुजारिश है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपने एक दो कदम उठाए हैं, आइंदा इससे भी बड़े कदम उठाने की जरूरत है। Nisan
अरबाइन जुलूस को लेके क्या पैगाम देना चाहेंगे, इसी के साथ साथ इत्तेहाद को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? खासकर आज के दौर में जो है इत्तेहाद को लेके बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस मैसेज क्या रहेंगे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ से आदमियत के लिए सबसे पहले मैं सागर साहब आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की अरबाइन हुसैनी के जुलूस को कवरेज दे रहे हैं। दुनिया इंसानियत की बका और सालमियत के लिए 61 हिजरी में जिस इमाम ने कुर्बानी पेश की थी, इस्तकबार ज़मान के ख़िलाफ़ हुसैन इब्न अली ने जो क़याम पेश किया था, उस क़याम के तनाजुर में आज की इंसानियत के माशरे को साजगार और अमन और सुकून और इत्मीनान का बाइस बनाने की खातिर ये जुलूसें बाज़ारों में, सड़कों में गुज़र रही हैं और ये कहने के लिए कि इन्नी माकुम ला माअदुविकुम, ए मौला हम आपके साथ हैं, आपके दुश्मनों के साथ नहीं है। आज का ये जुलूस इंसानियत की बका के लिए है और इस्तकबार ज़मान की मुखालिफत में है। यकीनन जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जराइम के इर्तिकाब हो रहे हैं, आलम इंसानियत को उसे रोकने के लिए इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, उनका जो नहज़त है, वो एक मसअल राह है। तो हम दुनिया को ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि यकीनन आज की दुनिया को अगर बचाना है इन जालिमों और जाविरों से, तो इमाम हुसैन से दर्स लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, मैंने एक शेर आपकी खिदमत में पेश किया है, दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमियत के लिए। यकीनन इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी वो इंसानियत के लिए दी है और आज के ज़माने में जिसके दिल में, जिसके जहन में इंसानियत बाकी है और इंसानियत के लिए जिसकी धड़कनें धड़कती है, वो इमाम हुसैन से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। आपने देखा कि करोड़ों इंसान करबला में बग़ैर तफ़रीक़ मसलक व मकतब इमाम हुसैन के अरबाइन में शरीक है। करगिल की सरजमीन में भी यकीनन माशाअल्लाह धीरे धीरे इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं और यकीनन इत्तेहाद तो इंसानी माशरे की बका के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और यकीनन इस ज़रूरत की आबियारी हो रही है माशाअल्लाह। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और इमाम ख़ोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन जमयतुल उलमा इस्ना अशरा कारगिल की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस साल जो है देखने को मिल रहा है। तो ख़ासकर करगिल की बात करें तो करगिल मेन टाउन में इन दोनों इदारों को जो है एहतियात होने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम ख़ोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट और इस्लामी स्कूल खत्ते लद्दाख के एक दो बड़े रिलीजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और माशाअल्लाह दोनों इदारों से पूरे करगिल, पूरा लद्दाख जुड़ा हुआ है और कभी कभार यहाँ पे कुछ नाचाकी होती है और ये हर जगह हो जाती है और ये इस हालत में भी नहीं है कि जिससे हमारी कौम में नाइत्तेफाकी हो। माशाअल्लाह कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें वक्त बर वक्त जिनका इलाज बहुत ज़रूरी है। अभी की जो बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामी स्कूल के सदर मोहतरम और इमाम ख़ोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन
चेयरमैन मोहतरम जनाब आगे शेख हसनैन और मोहतरम शेख नज़ीर साहब और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये जो टाइमिंग की जो रूटेशन बनी है, तो हम समझते हैं कि ये भी एक बेहतर है। लेकिन मैं ये बात पहले भी मीडिया से खिताब होकर कह चुका हूँ कि ऐसी कोई नाचाकी नहीं थी कि जिसमें हम ये सोचें कि क्लश हो जाएंगे या मसलन फसाद हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से ये दोनों इदारे अपने अपने एतबार से जुलूसें निकाल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ आशंका रहता है जिसको मद्देनजर रखकर दोनों इदारों ने इस टाइम सहमति से एडमिनिस्ट्रेशन से भी सब ने मिलकर एक रिट्रीशन जो बनाया है वो फिलहाल ट्रायल बेस पे है। आप देखते हैं कि लोगों का क्या इस पे रिएक्शन आता है। मेरा ख्याल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कैंप में था तब भी आज भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जुलूसों के अंदर कोई नाचाकी नाइत्तेफाकी लड़ाई झगड़े होने ही है, लेकिन हाँ कोई आशंका है तो उसको मद्देनजर रखकर एक टाइमिंग बनाई है, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ करारी साहब बात कर रहे थे खासकर आज के दिन को लेके और खासकर यूनिटी को लेके, इत्तेहाद को लेके इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे।